पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in the list of business for today. आइटम नंबर 7 श्री सोम प्रकाश जी। Director sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 7 in the list of business for 2 days. Thank you. आइटम नंबर 8 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री देबू सिंह चौहान। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री महासचिव। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha, Shri Derek O'Brien, with the Committee on Public Accounts. I have also to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the Inter-Services Organization, Command, Control and Discipline Bill 2023 and the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 11 श्री हरीश द्विवेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 49वां, 50वां, 51वां, 52वां एवं 53वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 12 श्री बालाशोरी जी। I raise to present the 30th and 31st reports of the Committee on Subordinated Legislation, Hindi and English version as listed against my name in today's list of business. Sir, I support him wholly. आइटम नंबर 13 श्री PC गद्दी गोदर। With your kind permission, I rise to present a copy of each Hindi and English versions of the 59th report of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 on the subject Mission for Integration Development of the Horticulture. आइटम नंबर 14 श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Sir, I beg to present the 32nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 15 श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Sir, I rise to lay on the table a copy each of the final action taken report statements on the 21st, 22nd, 23rd and 26th action taken reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 16 श्री परवत सिंह पटेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 16 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 18 डॉक्टर शशि थरूर। Thank you, sir. I rise to lay on the table the 43rd and 44th reports,
Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name at serial number 18 in today's list of business. Item number 17, Sri Parvat Singh Chauhan, Patel. पटेल सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 17 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की आगे की कार्यवाही के वक्तव्य में कि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू सर। आइटम नंबर 19, श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक अस्तित्व प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देता हूँ। आइटम नंबर 21, साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 21 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध विवरण जो कि वर्ष 2023 एवं 24 की अनुदान मांगों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो संसद परिषद से हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनश्याम और पीयूष। और घनश्याम, इस वक्त क्या वहां पर हलचल किस तरह से तेज हुई, क्योंकि राहुल गांधी ये कहा जा रहा है कि बोलेंगे और उसके बाद क्या वहां पर और हलचल बढ़ेगी? क्या अभी तक आपने दृश्य देखा वहां पर? अच्छा अभितोष, 12:10 पे कहा जा रहा है जब राहुल गांधी बोलेंगे। और आपको बता दें कि आज जब बोलेंगे तो बहुत उम्मीद की जा रही है, कांग्रेसी बहुत उत्साहित है कि आज जो बहुत बड़ा धमाका करेंगे, आज जो बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। लेकिन उनके बोलने पे जो बीजेपी है वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। वो बता रही है कि देखिए राहुल जब बोलते हैं तो उनका ही फायदा होता है। राहुल का बोलना यानी कि कॉमेडी शो का होना, ये बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और राहुल कुछ कहेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी तस्वीर है जो आज हाउस में पेश की जाएगी। और उसके बाद लगातार अभितोष चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी अपने भाषण में आज क्या बोलेंगे जिससे कि वो रीलॉन्च हो जाए, जिससे ये पता चल जाए कि वो दोबारा से लॉन्चिंग पैड पे है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही है अभितोष कि उनको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए और बताया जाए कि असल में अभी कांग्रेस को जितना डूबता हुआ माना जा रहा है वो डूबता हुआ जहाज है नहीं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। पीयूष, देखिए जब बात की जा रही है राहुल गांधी की तो ये कहा जा रहा है कि ये रीलॉन्चिंग का प्लान है और रीलॉन्चिंग के तहत में बोले कुछ ना बोले से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं, जो भी बड़े नेता हैं, उनका कहना साफ है कि राहुल गांधी की ये रीलॉन्चिंग है। उसके अलावा इनका जो विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन की लॉन्चिंग आज है और इसके नेता के तौर पर राहुल गांधी को कांग्रेस रखना चाहती है और राहुल गांधी आज बोलेंगे। हालांकि जब जब राहुल गांधी ने संसद में बोला है तब तब नुकसान कांग्रेस का और राहुल गांधी का हुआ है। और आज यही एक सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज अटैकिंग मोड में राहुल गांधी पर रहेगी, जहां स्मृति ईरानी, लेकिन पीयूष इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी आज तरफ से बोलेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं। राहुल गांधी बोलना शुरू कर चुके हैं। जोड़ो 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 भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ,
अभी भी कष्ट हो रहा है, वो जो कष्ट हुआ है, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। आज जो मेरा भाषण है, डरो मत। और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए